الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما السلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. برادران اسلام، شہدایان دین مدین، شمع رسالت کے پروانوں، عاشقان اولیاء، عاشقان مولوی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تمام حمد و ثنا، تمام عبادات اس ذات کے نام جو اس کائنات کے ذرے سے لے کر عرش کی بلندیوں تک ہر شے کا خالق و مالک ہے، جو رحمان ہے، جو رحیم ہے، جو غفور ہے، جو کریم ہے. ہم اسی کی بندگی کرتے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے. درود و سلام بے حد لامحدود اس ذات کے نام جو وجہ تخلیق کائنات ہے، جو وجہ پاسبان آدمیت ہے، جو آغاز رحمانیت ہے، جو نور الہی. یاد نبی کو دل سے نکالا نہ جائے گا، یاد نبی کو دل سے نکالا نہ جائے گا، درد غیر کا سینے میں پالا نہ جائے گا. فرشتوں سے نہ پوچھو نہ انسان سے پوچھو، فرشتوں سے نہ پوچھو نہ انسان سے پوچھو، کیا شان محمد ہے یہ رحمان سے پوچھو. سرکار کی چوکھٹ پہ کھڑے کہتے ہیں جبرائیل کیا تجھ پہ غلامی ہے یہ دربار سے پوچھو. آج کی یہ ذکر محفل ہے، ذکر پاک کی محفل، ذکر سبحانی، یہ ذکر و فکر کے لمحات، عشق و مستی کے لمحات ہے، یہ بامقصد لمحات ہے. کتنا وقت آپ نے گزارا کس کی رضا کی خاطر؟
والوں میں سے ہے. ہمارے آقا نے تو ہمیں پیغام ہی یہی دیا ہے. آج ہم سرکار کے ٹکڑے کھا کر ہم فخر کرتے ہیں کہ ہم تاجدار مدینہ کے غلام ہیں. سرکار کی سب نسبت ہے, اس لیے ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں. ہمارا یہ ایمان ہے جس کا تعلق, جس کی نسبت تاجدار مدینہ کے ساتھ ہو جائے گی, اس کی دنیا میں بھی بہاریں اور آخرت میں بھی غلامی رسول میں. یہ ہے ہمارا ایمان, یہ عاشقوں کا پہچان ہے. میرے تقریر کرنے سے پہلے میرے ذہن میں ایک بات آئی تھی کہ یہ کون سی محفل ہے؟ یہ نسبت والی ہے نا, آپ نسبت کے دیوانے ہیں نا, نسبت والے ہیں نا سارے, نسبت ہے نا سب کی, دامن نسبت ہے نا. نسبت والوں کا یہ عادی ہوتا, جب دیوانے بیٹھتے ہیں تو جب میرے آقا کا نام آئے تو دیوانگی کے ساتھ ضرور پڑھتے ہیں. پھر ایمان کا عمل ہوتا ہے. یہ کسی مولوی سے نہیں ملے گا, یہ اسی سے ملے گا جس کے دل میں سرکار کا ہوگی, اور وہی صوفی ہوگا, وہی ولی ہوگا جو میرے آقا کا سچا غلام ہوگا. کہ داتا نے ہجویری کو 1000 سال گزر چکے ہیں, لیکن آج بھی لاہور میں جا کر داتا کے نعرے لگاتے ہیں. کیوں لگاتے ہیں؟ کہ داتا نے ہجویری نے اپنی زندگی میں اپنی ہستی کو مٹا کر آنے والے کو ذکر مصطفیٰ کا پیغام دیا تھا. راجا قاسم مولوی کے خزانے قاسم کے کیوں نعرے لگاتے ہیں, کیوں ہم نعرے لگاتے ہیں؟ کسی کو کوئی پیسے تو نہیں دیے ہوئے, لیکن دل سے یہ عطا اٹھنے والی یہ جذبات ہے, یہ محبت ہے. خواجہ قاسم مولوی نے اپنی ہستی کو مٹا کر آنے والے کو محبت رسول کا پیغام دیا. اللہ کے نبی کے دیوانے, انسان کے نبی کے دیوانے, زندہ کے نبی کے دیوانے. یہ لفظ ذکر سبحانی ہے, وہی حسن والا. میری بات ابھی ختم نہیں ہوئی تھی. وہ حسن لب جگہ ہے, حسن ہے, حسن ساز ہے, حسن عطا کرنے والا ہے, فکر عطا کرنے والا ہے, فکر عطا کرنے والا ہے. وہ کون سی ذات ہے؟ وہ اللہ ہے. اسی کا یہ کرم ہے سارا, یہ اسی کا کرم ہے جو دماغ سے جو روم جزا کا مالک, روم پیر ہے. زمین و آسمان کا نور اسی سے ہے, اور اسی کے نور سے میرے آقا کا نور. یہ ہمارا ایمان ہے, یہی ہمارا ایمان ہے. تو دعا کریں کہ یہ جو ذکر کی محفلیں سجتی ہے مولا کریم ان کی برکات جاری رکھے. ہم ہی توحید کا نعرہ لگاتے ہیں اور ہم ہی سرکار کی غلامی کا نعرہ. اگر توحید کا نعرہ لگا
फरमाए। आप यहाँ से जाए तो ये मोहब्बत लेकर जाए, खाली ना जाए। मेरा ईमान है खाली कोई नहीं जाएगा, क्योंकि सरकार मदीना की ये नस्ल है, सरकार के साथ निस्बत है। इंशाअल्लाह जो भी आएगा, जिस हाल में आएगा, मेरे आका के जिक्र के सदके उसके दामन में बरकतें रखेगा और ये पैगाम जारी रहेगा। अल्लाह ताला इस पैगाम के सदके हमें अपने आका के साथ मोहब्बत नसीब फरमाए। और मोहब्बत का तरीका यही है, ये निस्बत ही से वाक़ होती है, निस्बत ही से सारी अज़मतें हासिल होती है, ताल्लुक ही से सारी बरकत मिलती है, उसकी रहमतों का नज़ूल भी ताल्लुक ही से होता है। सारी जिंदगी ला इलाहा कहते रहो ना, अगर मेरे आका की मोहब्बत दिल में नहीं होगी तो ये कलमा भी कबूल नहीं होगा। ये मोहब्बत को अपना लो, मोहब्बत को अपना लो, मोहब्बत को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लो। हदीस पाक में आता है, a man came to the Prophet ﷺ and said, when the day of the judgment will come, and the Prophet ﷺ proclaimed, have you prepared for it? And he said, I do not have lot of prayer, salah, sacrifice and fastings, but I do love with Allah and His great Prophet. Prophet ﷺ said, on the day of the judgment, you will be with those that you love. मैंने आपने कह दिया कि जिसके साथ तुम्हारी मोहब्बत होगी उसी के साथ उठाए जाओगे। आज हम ये दावा करें कि हमारी मोहब्बत अपने आका से हो जाए, अपने आका से निस्बत हो जाए, तो मेरा ईमान है अगर साहब ने ये जो महफिल सजाई है इसकी बरकत के सबके सबकी दुनिया में इनकलाब है, मोहब्बतें नसीब होगी। ये निस्बत वाली महफिल है और निस्बत के हवाले से एक सबक की बात भी कह दूं, ये सारी मोहब्बत वाली बातें हैं। जैसा कि शाह साहब ने कहा, नाथान हम सब नाथान सरकार के खूबसूरत आवाज में बयान करता है, तो इस तरह की नजर में सब सरकार के नाथान है। दुआ करें कि हमारा सबका नाम लिखा जाए। इब्राहिम आजम बड़े आशिक थे ना, बादशाह थे, लेकिन जब मार्फत मिली, जब सीनियर बहन हुए, मार्फत से मुनव्वर हुआ, दुनिया की बादशाह को ठोकर से छोड़ दिया। तो आपके पास एक दीवाना आया और कहने लगा, या शेख मुझे कोई नसीहत फरमा दे, मुझे कोई तालीम अता कर दें, मुझे कोई बयान दे दें ताकि मेरी जिंदगी संभल जाए, मेरी आंदा जिंदगी में बहारें आ जाए, मेरी आंदा जिंदगी में सुकून आ जाए। ये जो जिक्र करते हैं ये भी सुकून का पैगाम देता है ना। अल्लाह जिक्र समीर गुरु सवाल में अल्लाह गिव यू द सैटिस्फैक्शन ऑफ योर हार्ट, आपके दिलों में जो है इत्मीनान आ जाता है। आता है इसलिए कि जब उसका जिक्र करते हैं ये उतर जाता है, उसकी बरकत होती है। तो आपने वो कहा, उस मुरीद ने कहा कि मुझे जो है मुझे नसीहत फरमा दें। तो आपने कहा जो बंद है इसे खोल दो और जो खुला है उसे बंद कर दो, से खोल दो और जो खुला है उसे बंद कर दो। वो क्या कहने लगा, हुजूर मुझे तो समझ नहीं आई, मुझे समझ नहीं आई। उन्होंने कहा कि जो थैलियां है ना रखी हुई उनके मुंह खोल दो और जो जबान है उसे बंद कर दो, काम हो जाएगा। जो जबान है उसे बंद कर दो। तो फिर आप एक के बाद एक और आपका मुरीद आया और हज़रत इब्राहिम से कहने लगा, मुझे भी कोई नसीहत फरमाए। तो आपने कहा, मैं भी तुम्हें कुछ बातें बताता हूँ, उसे अपना लो तो उसकी बरकतें नसीब होंगी। कहा कि जो गुनाह करते हो, जिसकी नाफरमानी करते हो, जो खालिक की कायनात है जिसका जिक्र करें, उसकी नाफरमानी करते हो तो फिर उसका रिज़्क़ खाना छोड़ दो, अभी वो बंद कर दो। वो कहने लगा, हुजूर के उसका मैं खाने के बगैर कैसे जिंदा रहूंगा? तो कहा कि फिर तुम्हें कैसे देख देता है कि जिसकी वजह से, जिसकी निस्बत से तुम्हें रिज़्क़ अता हुआ है, ये रोटी मिली है, उसकी नाफरमानी करो, उसकी नाफरमानी करो। तो फिर आपने कहा कि जो है जिसकी बादशाह से बाहर निकल कर गुनाह करो, अगर गुनाह करने हैं तो उसकी बादशाह से बाहर निकल कर गुनाह करो। कहने लगा, हुजूर कि ये सारी जगह पे उसी की तो बादशाह है, हर जगह पे उसकी बादशाह है, हर जगह पे उसकी हुकूमत है, मैं क्या करूं? तो कहा कि फिर जिसका रिज़्क़ भी उसी का खाते हो और उसी के मुल्क में रहते हो, उसी की साए में रहते हो, तो फिर उसकी नाफरमानी क्यों करते हो? उसकी नाफरमानी को छोड़ दो। फिर मेरे शेख ने कहा, हज़रत इब्राहिम ने कहा कि फिर ऐसी जगह पे जाके गुनाह करो जहां पे वो नजर ना आए, वो तुम्हें देख ना सके। तो कहने लगे कि हुजूर वो तो कोई जगह ही नहीं, वो तो अंदर को भी जानता है, बाहर को भी जानता है, ज़ाहिर को भी जानता है, बातिन को भी जानता है, हर जगह पे उसी की हुकूमत है। तो कहा कि फिर रिज़्क़ भी उसका खाते हो, रहते भी उसके मुल्क पे हो, फिर कहते हो कि मैं छुप के गुनाह करूं, वो देखेगा तो इन सब बातों को छोड़कर उसकी रज़ा की खातिर अपनी जिंदगी को अपना होगा। तब यही बात हुई, कहा कि मैं और भी तुम्हें बताता हूं, वो और भी तुम्हें कोई बताता हूं, और भी सबक ले लो। तो कहा कि जब ये जो है ना मौत का फरिश्ता आएगा, जब तेरी मौत आएगी, मौत का फरिश्ता आएगा, उसे कह देना कि थोड़ी सी मुझे मोहलत दे दो, उसे कहना कि थोड़ी सी मुझे मोहलत दे दो। तो कहने लगे, हुजूर का मौत का फरिश्ता आता है, वो तो मोहलत नहीं देता, वो फिर चांस नहीं देता, वो आता है और फिर ले जाता है। तो कहने लगे फिर उससे पहले अपने आप को तैयार, मोहलत का वक्त ही ना आए,
जब मैदान लश्कर में हिसाब किताब होगा और गुनाहगारों को जो सजा दी जाएगी और वो दोजख में जाएंगे और उस वक्त कहना कि मैं दोजख में नहीं जाता, तो कहा कि ये कैसे हो सकता है, हुक्म उसका हो जाए और फिर मैं कहूं, तो फिर कहा कि उससे पहले ऐसा हिसाब दे दो कि तमाम तुम्हारे गुनाह बख्श जाए और उसके आप भी सुखरू हो जाओ और अपने आका के हावी सुखरू हो जाओ। और कौन सा तरीका है? वो यही तरीका है कि ऐसे जिक्र की महफिलों को सजाया करो, सरकार के मिलाद को मनाया करो, सरकार के साथ मोहब्बत करो। कुछ लोग कहते हैं कि मिलाद क्यों मनाते हो, ये जिक्र क्यों करते हो, ये बयान क्यों करते हो, ये क्यों करते हो? वो अपने प्रेम की सोच है जो हमारे शहर में कह दिया मेरे दादा हजूर ने फरमाया था। आज गरीबन नमाज में सुबह फजर की नमाज के वक्त की बात है, मैं हकीकत बात कर रहा हूँ कि आपने कहा बचा इस तरह जिक्र करो कि चौथी आसमां में भी तुम्हारी आवाज है, मस्ती के साथ जिक्र करो, क्योंकि हमारे शहर का हुक्म है ना, वी आर द फार्मर्स, हम तो सर्वेंट हैं, हम तो हुक्म मानने वाले हैं, जो हुक्म मानते हैं वो मकाम को पहुंचते हैं, वही अफसरों को हासिल करते हैं। और मेरे दोस्तों जिन्होंने हुक्म माना है वही बिलाल हबशी, हुक्म माना तो बिलाल हबशी बने ना, हुक्म माना तो हम बकर से सदीक बन गए, हुक्म माना तो बकर से फारूक बन गए, हुक्म माना हमान से गनी बन गए, हुक्म माना अली से शेर खुदा बन गए। ये तो मोहब्बत की बात है। आज ये हमने दावा करना है, इस महफिल से जब निकलो तो यही मोहब्बत का पैगाम लेके जाओ कि अपने घरों में जाओ, अपने बच्चों को, अगर नौजवान है तो अपने भाइयों को, अपनी बहनों को ये पैगाम दो कि इस मुख्तसर की जिंदगी में अगर बहारें लानी है, अगर इनकलाब लाना है, अगर सरकार की मोहब्बत को बसाना है, तो ऐसी महफिलों में आकर उनकी बरकत को हासिल करें। ये दिखाने वाली महफिलें नहीं, ये मोहब्बत वाली महफिलें। और अभी ये महफिलें नसीब फरमाए और इन महफिलों के हवाले से ये मिलाद की महफिलें भी सजाते हैं। बनु तमीम का कबीला का जो है ना वकील और बड़े बड़े उलमा जो है मेरे आका की बारगाह में हाजिर हुए और कहने लगे सरकार को हम अपने मदद के बारे में आपसे गुफ्तगू करते हैं, हम अपने मदद में करवान जो उस कमली वाले सरकार पे उन्होंने कहा बेशक तुम बात करो। और उनका बड़ा हिफाजत का आकारत वो अपने मदद के बारे में कहने लगा। जब वो कह के बैठ गया तो मेरे आका ने मुबारक उंगली उठाकर हज़रत कैफ बिन साबित रज़ियल्लाहु की तरफ कर दी और वो खड़े हो गया साथी रसूल, उन्होंने इस्लाम की रूहानियत के बारे में प्रचार किया। जब वो बैठ गए तो मेरे दरबार जो है कुफार का एक शायर था बहुत बड़ा, वो खड़ा होकर उसने 8 अशआर पढ़े अपने मजहब के हवाले से। और ये सरकार की सामने ये महफिल हो रही है, ये किसके सामने हो रही है? मेरे आका की बारगाह के सामने ये महफिल हो रही है। उसने अशआर पढ़े, जब वो बैठ गया तो मेरे आका ने मुबारक उंगली हसन बिन साबित की तरफ उठा दी और कहा कि आप खड़े हो जाए। और आपने फिर बदी 13 अशआर पढ़े। वो 13 अशआर जो है मेरे आका की मोहब्बत से पढ़ेंगे, इस्लाम की वजाहत से पढ़ेंगे, इस्लाम की अजमतों के लिए पढ़ेंगे। जब वो अशआर पढ़ेंगे तो उनको फार में पढ़े लिखो उन्होंने खड़े होकर कहा कि जिसके गुलाम की ये हालत है, जिसके गुलाम में इतनी इस्लाम में तासीर है, उस आका का क्या कमाल, क्या शान होगी। वो सारे के सारे हल्का खामोशी इस्लाम होगी। और मेरा ईमान है ये जिक्र वाली महफिल है, ये बरकत वाली महफिल है। मैं एक बात हकीकत बताता हूँ जो मुझ पे गुजरी है। कनाडा की सरजमीन पर पिछले साल मैं वहां पे पहला मिलाद का जलसा इस गरीब मस्कीन को ये हादसा यकीन को ये हासिल हुआ है कि किचनर की सरजमीन सिटी पे पहला मिलाद का जलसा मनाया गया। 500 के करीब हम साथी थे वहां पे। एक लंबी दास्तान है कि कुछ ने मना किया, जो मना करने वाले थे वो तख्तों में हाथ रखे खड़े रहे और सरकार के गुलामों का मजमा भरा 500 की सीटें थी, मेरे 200 जगह नहीं रही, इतने दीवाने आ गए। तो वहां पे जब जिक्र हुआ तो अल्लाह उनका जब हमने जिक्र जब करेंगे तब मुहाजरत पड़ा तो एक अंग्रेज और उसकी बीवी थी वो खड़े हो गए। वो मेरे पास आए, वो कहने लगे, मुझसे इंग्लिश में बात की तो वो कहने लगे कि मुझे और कुछ
हमेशा चमकते रहना, इनके दिलों में बहार रखना, इनके दिलों में जो परेशानियां हैं वो दूर करवा देना, जो गुजरते उन्हें भी दूर करवा देना, और सरकार की मोहब्बत का मरकज बना देना, सरकार के साथ निस्बतें बना देना। मेरा ईमान है ये दुआएं उठती है ना तो कबूल भी होती है, नहीं भी होती, इसलिए नहीं होती उसकी भी वजह है। हम खुदा को तो मानते हैं, वहदहू ला शरीक है, मानते हैं ना, हम उसको मानते हैं लेकिन उसकी इताअत नहीं करते। हम रसूल की गुलामी का दावा तो करते हैं लेकिन हम अपनी हालत सरकार के साथ नहीं पैदा करते, सरकार की इत्तबा नहीं करते। हम कुरान तो पढ़ते हैं लेकिन कुरान में अमल नहीं करते। हम शैतान की बातें तो सुनते हैं लेकिन शैतान के साथ दोस्ती रखते हैं। फिर कैसे हम हमारे हाथ है उसकी बातों में उन्हें कबूल हो गए जब इन हम चीजों की नफी कर लेंगे और सरकार के साथ दामन वाबस्ता कर लेंगे। मेरा ईमान है जो हाथ उठेंगे वो कबूल भी होंगे। डॉक्टर मौलवी की निगाहें उठती थी तो इनकलाब पैदा हो जाता, निगाहें उठती थी, आप पीछे रखते थे, जब उठाते थे तो इनकलाब पैदा हो जाता, जब उठाते थे तो जिसके सीने में लगती थी उसका सीना मुनव्वर हो जाता, जिसके दिल में लगती थी उसका दिल जाग जाता। इसलिए ख्वाजा कासिम मौलवी ने हर लम्हा उसकी याद में अपनी और उन्हीं का ये पैगाम है। कभी गंगोशी में देखें तो जिक्र की सदाएं हैं, लहरियाशी में देखेंगे, दर्राशी में देखें, गलाशी में देखें, थोड़ीशी में देखें, 750 पांच शरीयत खुलफा पैगाम ख्वाजा कासिम मौलवी ने, और 35,000 को खिलाफत अता है। श्रीलंका में देखें, बर्मा में देखें, अमेरिका, हर जगह पे ख्वाजा कासिम के नारे लगते हैं, फिर उनके दीवाने लगा रहे हैं, फिर उनके खुलफा लगा रहे हैं। हमें ये खुशी है कि ये बहार इस तरह जारी रखे और मौला के जिक्र की बात के सबकी हम पे करम फरमाए। आखिर में ये जो है दरबार का मामूल है, हज़रत किबला मखदूम तरीक़त पीर उमर पाशा साहब का भी हुक्म है कि अदर साहब ने पूरा साल बड़ी मोहब्बत के साथ इस महफिल को सजाया है, इन्हें ये इनाम देते हैं। आइंदा भी इस महफिल को इसी तरह जारी रखें और इस शहर में ये जिक्र की महफिल का एहतमाम करते रहें। मैं आखिर में तमाम साथियों का, हमारी बहनों का जो आई हैं दूर दूर से, तमाम का मशहूर हूँ। दुआ करें अल्लाह ताला हिम्मत अता फरमाए, ये ताकत अता फरमाए। बड़ा सफर किया, 8-10 महीने से लगातार सफर किया, तबीयत भी खराब है, सांस की तकलीफ भी है, लेकिन ये सरकार का करम है कि बस जहाँ भी जाते हैं सरकार के करम से महफिलें होती रहती है। अल्लाह ताला ये नसीब फरमाए और बाकी कार्य कबूल फरमाए। आखिरी मेरी मोहब्बत वाला शेर है, मेरी जिंदगी का हिस्सा है। इश्क़ नबी मेरे दिल में समा जाना, इश्क़ नबी मेरे दिल में समा जाना, मुझको भी मोहम्मद का दीवाना। आप खड़े जाए जिक्र करेंगे।
नौजवानों के दिलों में जो मोहब्बत है उसमें और कामयाबी आता है। इंशाअल्लाह जून में वहां पर भी महफिल होगी, वो भी उनको भी कुछ जिम्मेदारी दी जाएगी। मौला करीम ये बरकतें में नसीब फरमाए, ये बरकतें सबको नसीब फरमाए। सब इस सरजमीन के जितने भी गाँव है मौला करीम सब पे करम फरमाए, सबके घरों को आबाद फरमाए, बीमार नशिफाए काम जाता जो बे औलाद औलाद सा जाता औलाद वालों को नेक बना दे, नागरीन की जमात में शामिल फरमा दे। हमारे बड़े प्यारे दोस्त इंग्लैंड से राजा अकबर साहब यहाँ पे आए हैं, मेरे बड़े मोहब्बत वाले, मौला करीम जो इनके दिल में उन्हें पूरा फरमाए, सब पे करम फरमा दे, तमाम आस्थानों को आबाद फरमा, तमाम आस्थानों के फैज को आम फरमा दे। मौजूदा दौर में जो फितने फैल रहे हैं मौला करीम उनसे बचकर सरकार मदीना के पैगाम को आम फरमा दे। मिर्जाइयत के खिलाफ हमें जाग करने की तौफीक अता फरमा। कादियानियत जो है ये ज़हर कातिल है, मौला करीम इसके खिलाफ नारे हक बुलंद करने की तौफीक अता फरमा और सरकार की मोहब्बत का पैगाम हर घर तक पहुंचाने की तौफीक अता फरमा। मेरे आका के साथ जितने भी मोहब्बत करने वाले हैं मौला करीम सब पे करम फरमा, सबकी हाजिरियां कबूल फरमा, उन्हें अपना गुलाम रखना, अपना मोहताज रखना। जितनी हमारी बहन जाए मौला करीम सबको आबाद फरमाना, सबको नेक बना देना, सबके घरों को आबाद फरमाना, सबकी मुरादें पूरी फरमाना। जितने नौजवान शामिल है मौला करीम सब पे सबके दिलों में सरकार की मोहब्बत को आबाद फरमा। मौला करीम उसी मोहब्बत के सदके ये दुनियावी मामला पे भी करम फरमा, सारी बात की मुश्किलें आसान, इस्लाम पे करम फरमा, पाकिस्तान पे करम फरमा, से करने वाले उन पे करम फरमा। तेरी बारगाह में हाजिरियत रहमान रहीम है, अपनी रहमानियत के सदके और अपने महबूब की महबूबियत के सदके हम पे